Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 21. So first of all we will go through the previous lecture, what we have done until now. In the last lecture we did assertive if we want to put some values on runtime in a rule for the if condition, how we will do it. We learned that we can put variables there and then we can put any value there. Then if we want to have more than once in a then condition, if we want to put values there more than one, so how we can use it? We just use the same variable multiple time. Then we also learn how to retract. We want to remove something from the fact list in runtime, so we can do it inside the rule but in the then condition, and before that we need to have the address of that specific fact, and that we can get it by having an arrow sign and a variable for this address. Then we had a little bit of understanding what single field wildcard is. We will learn it in detail inshallah today, and we will continue based on that, and then we will also go further for multi-field wildcard, and also we will learn how we can use both single field variable which is question mark and multi-field variable which is question mark with $sign. So how we will use it, and then if we want to use both variables in any place, anywhere, how we will use it inside the rule. And then we will also learn if we want to use both single field and multi-field wildcard together, how we can do that. So we will try to learn all these things today inshallah. So last time we had the same slide and we were learning instead of being a field value to a variable, the presence of a non-empty field can be detected alone using a wildcard. This type of situation in which only part of fact is specified is very common and very important. To solve this problem, a wildcard can be used to fire the Richard. This simplest form of wildcard is called a single field wildcard and is shown by a question mark. The question mark is called a single field constraint. A single field wildcard stand for exactly one field. So हमारे पास ये उसकी पूरी डिटेल थी. हमने ये सीखना था. इसमें हम ये अंडरस्टैंड कर रहे थे कि अगर हम ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं रखना चाह रहे, हम कोई वेरिएबल रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम कोई कंडीशन रख रहे हैं उसके अंदर भी कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही हो, जिस तरह पिछली मरतबा मैंने आपको बताया कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई मीटिंग में रखना चाह रहा हूँ और मैं उसमें कोई सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट किसी एक तरतीब के साथ आ जाए. मेरी कोई कंडीशन है, मुझे कोई स्पेसिफिक लोग चाहिए जिनके नाम में कोई एग्जैक्टली कोई कीवर्ड आ रहा है. अब वो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके नाम के स्टार्ट में मोहम्मद आ रहा हो, जिनके स्पेसिफिकली दो नाम हो, एक फर्स्ट नेम हो और एक सेकंड नेम हो. अब सेकंड नेम कुछ भी हो लेकिन फर्स्ट नेम उनका मोहम्मद हो, तो वो ऐसे सारे लोगों को मैं जमा करके उनके साथ मीटिंग करना चाह रहा हूँ. कोई स्पेसिफिक मकसद है फॉर एग्जांपल. तो अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, मैंने सिर्फ सर्च करना होगा. मुझे ऐसे रूल्स, ऐसे फैक्ट्स चाहिए होंगे जिनमें फर्स्ट नेम मोहम्मद आ रहा हो, लास्ट नेम कुछ भी हो जाए. लेकिन अब ये भी है कि साथ में सेकंड नेम होना चाहिए. अब कुछ लोग शायद ऐसे हों कि जिनके तीन नाम हों, फॉर एग्जांपल मोहम्मद असलम खान हो गया या इस तरह कुछ भी, तो तीन नाम हो गए. अब ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. अब मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि उनके सिर्फ दो नाम हो लेकिन फर्स्ट नाम उनका मोहम्मद आ रहा हो. तो ये मैं कैसे करूँगा, और सेकंड नाम कुछ भी हो उसके साथ मेरा कंसर्न नहीं, क्योंकि मेरा मकसद अभी फ़िलहाल
इस सिचुएशन में ऐसा है कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, या मैं कोई और कंडीशन रखना चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल खान के नाम से चेक करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा देखना चाह रहा हूँ कि कौन लोग हैं जो चौधरी हैं इस मीटिंग में आए हुए हैं, पहले उनके साथ मीटिंग करना चाह रहा हूँ, कोई भी कंडीशन हो सकती है। हम कोई एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे उसकी, तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे कैसे, हम उसी तरह रूल डिफाइन करेंगे, कोई नाम रखेंगे उसका, हमने यहाँ मीटिंग रखा, मीटिंग विद, अब खान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कंडीशन कि वो लोग जिनके फर्स्ट नेम में खान आ रहा हो और सेकंड नाम कुछ भी हो तो वो आ जाएं, वो उनके साथ मीटिंग हो रही है। तो अब वो मैं तो प्रिंट आउट में कुछ भी कर लूँगा, जो मैंने प्रिंट आउट करना है मकसद जो भी है, तो वो मैं कैसे करूँगा, हम इस तरह करते हैं कि हम शेल को ओपन करते हैं और यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने शेल कंसोल ओपन किया, हमें अब दो चीज़ें चाहिए, एक फैक्ट और दूसरा हमें चाहिए एजेंडा, ताकि हमें नज़र आ रहा हो कि कौन से रूल्स फायर हो रहे हैं और कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं और कौन सा फैक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हम रूल बनाते हैं, रूल क्या है, डिफ रूल, इसका टाइटल मैंने रखा मीटिंग। अब मैं यहाँ पर वो वाली कंडीशन इफ़ की लगाऊंगा, मैंने रखा मीटिंग विद खान, मैंने कर दिया कि जो जिसका फर्स्ट नेम खान आ रहा हो, सेकंड नेम, इसको अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, सिंगल फील्ड वाइल्ड कार्ड है, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहा हूँ जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब मुझे देन कंडीशन चाहिए होगी, मैं रूल को भी क्लोज कर दिया, मैंने एंटर किया तो मतलब कि कोई एरर नहीं आया, टॉप लेवल में चला गया, तो मेरा रूल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अब मैं करूँगा क्या कि मैं अब इंसर्ट करूँगा डिफरेंट फैक्ट्स इसके लिए। अब मैं डिफरेंट फैक्ट्स इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट अब मैं सिंपल खान दे रहा हूँ तो देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने एंटर किया एज अ फैक्ट, हमारे पास चला गया फैक्ट लिस्ट में, लेकिन कोई भी रूल एक्टिवेट नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है कि मैंने कंडीशन ये लगाई हुई थी कि उसके नाम में खान आ रहा हो लेकिन उसके दो नाम हो, तो दूसरा हमारे पास एक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि वो वहाँ पर वैल्यू ही नहीं है उसकी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ सेकंड नेम के फॉर्म में, मैंने दी तो उससे मेरे पास रूल एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसके बजाय 3 वैल्यू देता हूँ, क्या अब एक्टिवेट होगा? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 नाम वाले नहीं चाहिए, मुझे 2 नाम वाले चाहिए। हम अब इसकी कोई और एग्जांपल रखते हैं। मैं यहाँ पर इसके नाम से पहले आसिफ लगाता हूँ, अब ये भी एंटर हो गया। अब मुझे क्योंकि पहले नाम के साथ खान चाहिए, बाद में अगर नाम के साथ खान हो वो भी मुझे नहीं चाहिए था, इस वजह से वो वाला भी नहीं हुआ। अब मैं इसको सिंपली रन करूँगा तो क्योंकि मेरे पास एक ही रूल है, एक ही फैक्ट की वजह से एक्टिवेट हुआ, तो वो हमारे पास सिंपल एक आउटपुट आ जाएगी।
तो मकसद बताने का यहाँ पर यह था कि हम कोई वाइल्ड कार्ड रखना चाह रहे हैं, हम कोई ओपन रखना चाह रहे हैं कंडीशन को, जिसमें हम चेंज कर सकें अपनी मर्ज़ी के नाम, लेकिन उसमें कोई चीज़ स्पेसिफ़िक भी हमारे पास है। और वो स्पेसिफ़िक ये है कि हम कोई कंडीशन रखते हैं। अब इसके अंदर मैं और चेंजेस कर रहा हूँ रूल में। हम इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि नाम लास्ट वाला आ जाए और फर्स्ट में कोई आ जाए नाम, और दरमियान में खान हो और बाद में कोई आ जाए। अब इसको मैं एंटर करता हूँ, तो मैं इससे पहले रीसेट कर लूँगा ताकि पिछले रूल्स सारे निकल जाएं, सारे फैक्ट्स निकल जाएं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने बताया है कि मुझे क्या चाहिए, जिसके फर्स्ट नाम कोई भी हो और बाद में कोई भी नाम हो, लेकिन दरमियान में उसके खान आ रहा हो। मैंने CH साथ लगा दिया, इंटर में कर रहा हूँ, तो इससे रूल एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, दरमियान में उसके ये वैल्यू आनी चाहिए। इससे हो गया एक्टिवेट। मैं दोबारा रूल में चेंजेस कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले दो नाम कुछ भी हों, आखिरी उसके नाम के साथ खान आ रहा हो। इंटर किया मैंने, क्योंकि हमने रूल, हमारे पास एक ही रूल, हम एक ही नाम के साथ है, इस वजह से पिछला रूल और राइट हो जाएगा और वो चेंज हो गया। अगर तो हम ये करते कि हम इससे पहले रूल को भी रहने दें, पहले रूल को रहने दें और साथ में हम दूसरे रूल को, ये वाले को हम इसको दूसरा नाम दे दें, तो फिर हमारे पास दोनों रूल आ जाएंगे। मीटिंग 2 के नाम से हमने उसको रूल का नाम रख दिया। तो क्योंकि अब 2 रूल हो गए, इस वजह से पिछला रूल ओवरराइड नहीं होगा। ये भी एक्टिवेट, ये भी नॉलेज बेस में चला गया। अब इसके लिए मुझे सर्ट करना होगा। इस सर्ट मैंने बताया कि पिछले शुरू में कुछ भी हो सकता है। अब इससे मेरे पास मीटिंग 2 जो रूल थी वो भी एक्टिवेट हो गई, क्योंकि जो स्टार्ट में 2 नाम कुछ भी हों वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बाद के उसमें खान आना चाहिए। मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इसके नाम के एंड पे भी खान था और ये भी मेरे पास रूल था ऑलरेडी, और वो रूल क्या था कि पहले 2 नाम कुछ भी हों लेकिन बाद में खान आ रहा हो, तो वो हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको मैं रन करना चाह रहा हूँ। तो रन करने से क्या होगा, जो 3 आउटपुट्स थी वो मेरे पास आ जाएंगी। तो यहाँ सिंपली हम इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर हम ये करना चाहें, 3 फील्ड्स अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, द पैटर्न इंक्लूड्स वाइल्ड कार्ड टू इंडिकेट दैट खान इज लास्ट नेम is not important so long as the first name is Khan. The rule will be satisfied and fired. Now with the pattern of 3 field of which one is a single field wildcard, only fact of exactly 3 fields can satisfy it. In other words, only Khan with exactly 2 names can satisfy this. Suppose you want to specify Khan with exactly 3 names. हमने ये एग्जांपल देखी कि अगर हम इसके साथ डिफरेंट ऑप्शंस रखना चाहें, अगर हम फर्स्ट नाम के तौर पे सिर्फ ये रखना चाहें कि हमें ये पता हो कि कोई
कोई भी ऐसा नाम जिसका स्टार्ट में खान आ रहा हो लेकिन बाद में दो नाम और भी उसके हों, तो हम ऐसी कंडीशन रख सकते हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट में और एंड में कोई भी नाम हो, दरमियान में उसका जो हम मकसद है हमारा कोई स्पेसिफिक वो रखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाए, और अगर हम स्टार्ट में रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम 3 फील्ड 4 फील्ड जितने हम रखना चाहें हम रख सकते हैं, लेकिन ये सिंगल फील्ड है क्योंकि एक स्पेस के बाद एक फील्ड काउंट होगी। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी नाम ना दूँ वहाँ पर, लेकिन वो सिंपल खान लिख दूँ, फिर क्या होगा? अब मेरे पास तो ऑलरेडी हैं रूल्स, क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया हुआ। मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर एम्प्टी स्पेस 1 और एम्प्टी स्पेस 2 कर दिए मैंने, इंटर करता हूँ फैक्ट। तो हमने एम्प्टी स्पेस देने के बाद देखा कि फैक्ट तो इंटर हो गया लेकिन कोई भी रूल कॉल नहीं हुआ, हालांकि हमने स्टार्ट में 2 एम्प्टी स्पेसेस भी दे दिए जो कि उन फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस वजह से नहीं हुए क्योंकि नॉन प्रिंटेबल्स जो भी होगा हमने स्टार्ट में पढ़ा था वो काउंट नहीं होगी, वो एक सिंगल फील्ड काउंट होगी। और क्योंकि हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट 2 की है तो अगर एक भी होती तब भी ना होती, क्योंकि नॉन प्रिंटेबल है और वो एज अ वैल्यू आ नहीं सकती। तो अब हम आगे जाएंगे मल्टी रूल्स की तरफ। मल्टी रूल क्यों? Another interesting possibility occurs if Khan must be the first name, but only those Khan with 2 or 3 names are acceptable. One way of solving this problem is to write 2 rules. हमारे पास अगर ये कंडीशन है कि हम ये चाह रहे हैं कि जिनका नाम भी खान से स्टार्ट हो रहा है वो आ जाए, अगर तो उसके नाम 2 हैं या 3 हैं, बाद में उसके जितने भी नाम है फर्स्ट नेम के साथ उसके सेकंड या मिडिल नेम या थर्ड नेम जो भी अगर आ रहा है तो वो हो। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ज़ाहिर है मुझे 2 रूल्स बनाने पड़ेंगे। एक रूल ये होगा जिसमें सिंगल फील्ड वैल्यू होगी और दूसरा रूल ये होगा जिसमें डबल फील्ड होगी। मुझे जितने भी नाम रखने होंगे, जितने भी नाम होंगे खान के बाद, वो उन सब के लिए फिर मुझे मल्टी फील्ड्स रखने पड़ेंगे ताकि उतने ही रूल कॉल हो जाए। अब ये एक प्रॉब्लम होगा कि अगर ऐसा कोई बंदा आता है मीटिंग के लिए जिसके नाम 4 नाम हो एट अ टाइम या 5 नाम हो और उसके स्टार्ट में खान भी आ रहा हो, अब हमें चाहिए ऐसा बंदा जिसके स्टार्ट में खान आ रहा हो बाकी उसके जितने भी नाम हो, तो उसके लिए फिर मुझे रूल डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ये पता तो नहीं कि क्या फ्यूचर में इस तरह का कोई बंदा आएगा जिसके 5 नाम हो या 6 नाम हो, तो हर एक के लिए क्या मुझे ये सिंगल फील्ड वाइल्ड कार्ड यूज़ करना पड़ेगा? और क्या पता वो फ्यूचर में ऐसा आए ही ना और मैं उसके लिए वैसे ही रूल रख लूँ नॉलेज बेस में, तो वो भी वेस्ट है। इस वजह से इसका कोई हल होना चाहिए और इसका हल है फिर मल्टी फील्ड की तरफ जब हम जाएंगे। इससे पहले कि हम वहाँ जाएं हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। हम इनको प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल। और कैसे करेंगे हम इनको सिंपली बाइंड कर देते हैं। जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी वो हम एज वेरिएबल ले लेंगे और उनको फिर हम प्रेजेंट कर देंगे। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 रूल्स हैं और मैं ये करना चाह रहा हूँ कि उनमें अब मैं चेंजेस करूँगा। और वो चेंजेस कैसे करूँगा? कि मैं यहाँ पर दो वेरिएबल मैंने रख दिए। अब मैंने यहाँ पर बताया कि द मीटिंग इज विद फर्स्ट वेरिएबल
फिर सेकेंड वेरिएबल और फिर मैं ये वैल्यू साथ प्रिंट कर दूंगा। अब ये मैंने रूल बनाया था, सेम वही रूल जिसमें मैंने चेंजेस की टू के नाम से, क्योंकि फैक्ट ऑलरेडी वहाँ पर पड़े हुए थे तो वो फैक्ट्स एक्टिवेट हुए, फैक्ट्स की वजह से वो रूल एक्टिवेट हुआ। फैक्ट 3 कौन सा है हम देखेंगे, कादिम शाह खान। अब फैक्ट 3 एक्टिवेट हुआ और फिर कौन सा था, सबसे पहले फैक्ट 2 हुआ था, क्योंकि हम यहाँ से आ रहे थे टॉप टू बॉटम आ रहे थे, तो पहले फैक्ट 2 हुआ था आसिफ जान खान के नाम से, और फिर उसके बाद फैक्ट नंबर 3 एक्टिवेट हो गया, इसकी वजह से रूल एक्टिवेट हो गया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैंने रन किया तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ एज अ प्रिंटेबल फॉर्म आ गई, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साथ में हमें यहाँ पर स्पेस देनी चाहिए ताकि ये रूल क्यों दोबारा एक्टिवेट हुए, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस की और हमने रूल को रीडिफाइन किया। जब भी हम रूल को रीडिफाइन करेंगे तो जो भी फैक्ट्स होंगे फैक्ट लिस्ट में, उनकी वजह से वो रूल दोबारा एक्टिवेट होगा। तो अगर तो हम रूल में चेंजेस नहीं करते, सेम रूल है, तो फिर अगर फैक्ट्स वहाँ पर पड़े हुए हैं तो वो इस रूल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो दोबारा कॉल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमने रूल में चेंजेस किए हैं, इस वजह से जब तक अगर ये फैक्ट पुराने पड़े हुए हैं लेकिन फिर वो ये कॉल हो रहा है, उसकी वजह यही है कि रूल चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हम वो वेरिएबल यूज़ भी कर सकते हैं और वो हमारे पास आ सकते हैं एज अ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो भी वैल्यू आ रहे हैं उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड को अब हम यूज़ करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यही था जो मैंने आपको बताया इससे पहले, बाइंड करने से पहले, कि हमें अब नहीं पता कि कितने नाम वाले आएंगे फ्यूचर में, हमारे पास कितने फील्ड्स होने चाहिए उसके लिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। रादर देन राइटिंग अ सेपरेट रूल टू हैंडल ईच फील्ड, it's much easier to use the multi-field wildcard. This is a $ followed by a question mark and represents 0 or more fields. Notice how this constructs with the single field wildcard, which must match exactly one field. The two rules for that can now be written in single rule as follows. अब हमने ये देखा कि हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हम बहुत सारे रूल्स बनाने होंगे मल्टीपल फील्ड्स के लिए और वो हमें पता भी नहीं कि कितने होंगे, तो इस वजह से हम उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टी फील्ड यूज़ करेंगे। मल्टी फील्ड क्या करेगा, वो यहाँ पर जितने भी आ रहे होंगे वैल्यूज़, वो उनको एज अ वेरिएबल कंसिडर करेगा, एज अ फील्ड कंसिडर करेगा। कैसे करेंगे हम इसको, हम सिंपल इसका प्रोग्राम बनाते हैं। हमने क्लियर किया। अब हम करते ये हैं कि हमारे पास सेम वही रूल है, इसमें हम चेंजेस करते हैं। अब ये मेरे पास मल्टी फील्ड के लिए है $, क्वेश्चन मार्क और $के साथ।
अब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से इनको निकाल देता हूँ फिलहाल। अब रूल मेरे पास बन गया है और उसमें मैंने ये बताया कि आगे कितने भी फील्ड्स हो सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं एसर्ट करता हूँ। मैंने एसर्ट किया खान एक वैल्यू के साथ। इसमें ये स्पेस हम एक रखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। सेकंड के साथ रख दिया हमने। सॉरी, ये पहले हमने जो रूल बनाया है उसमें हमने सिंटैक्स की गलती की थी और वो ये थी कि हमें इसको बाद में लगाना है। अब मैंने रूल इंटर किया तो मेरे पास अब दोनों वैल्यूज़ आ गई। दोनों मैंने इंटर की तो कोई भी आ रही है। और इसमें अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दोबारा एसर्ट करता हूँ। इसमें मैंने तीसरी वैल्यू इंटर की। और अब मैं जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर रखता जा रहा हूँ खान के बाद वो एक्टिवेट हो रहा है रूल। उसकी वजह क्या है कि मल्टी फील्ड है। यहाँ पर जितने भी फील्ड्स आएंगे स्पेस के बाद वो सारे की सारे कंसिडर होंगी। और क्योंकि पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि उसके फर्स्ट नाम के साथ खान हो तो बाद में जो भी वैल्यू आ रहा हो अगर तो वो एम्प्टी है तो भी वो होगा, क्योंकि ये नॉन प्रिंटेबल वैल्यू या एम्प्टी स्पेस को भी ले लेता है। हमने क्योंकि एक मरतबा एंटर किया हुआ था, अब हम ये देखते हैं कि हम दोबारा अगर करते हैं तो ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये ऑलरेडी एक मरतबा आ चुका है खान के नाम से। हम इवन अगर हम इसके अंदर स्पेस को भी कर दें तब भी नहीं होगा, क्योंकि वो इस स्पेस को एक काउंट कर रहा है ऑलरेडी। अगर ये वन वैल्यू है या नहीं है इसको एम्प्टी स्पेस भी ले सकता है ये। इस वजह से ये नहीं होगा। अब हम इसको रन करते हैं। जब हमने रन किया तो सारे रूल्स फायर हुए और हमारे पास जितने भी एक्टिवेट्स हुए थे सारे कॉल हो गए। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। हम इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी नाम मेरे पास आ रहे हैं बाद में फर्स्ट नेम के बाद उन सबको मैं प्रिंट कर दूँ। वाइल्ड कार्ड्स हैव अनदर इम्पॉर्टेंट यूज बिकॉज दे कैन बी अटैच्ड टू a symbolic field to create variables such as variable x, $variable x, $name और $variable name। हम इनको अटैच कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ और उनके मल्टी वाइल्ड कार्ड वैल्यूज के साथ भी। The variable can be single field variable or multi field variable depending on whether a variable or a dollar sign is used on the left hand side. Note that on the right hand side only variable x is used where the x can be any variable name. हम अगर हमारे पास हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको एज अ वेरिएबल ले रहे हैं, वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, तो हम लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करेंगे। इससे ये डॉलर को हम हटा देंगे और हम सिर्फ डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क एक्स को यूज़ करेंगे। यू कैन थिंक ऑफ डॉलर एज अ फंक्शन हुज आर्गुमेंट इज सिंगल फील्ड
wildcard or a single field variable and returns a multi-field wildcard or a multi-field variable respectively. यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ये जो डॉलर है ये एक्चुअली हम इसको एक फंक्शन ले सकते हैं कि ये फंक्शन है, इसके अंदर ये वेरिएबल है x, तो ये एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी हम उसको यूज़ करेंगे, ना कि उसके फंक्शन को भी हम साथ में कॉल करेंगे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अब रूल बना रहा हूँ और उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि उसके पहले नेम के साथ खान हो और बाकी जो भी नाम आ रहा हो वो मैं प्रिंट करना चाहूँ, उसको एज अ वेरिएबल लेना चाह रहा हूँ। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, इसके वैल्यू जो भी यहाँ पर आ रही होगी इस डॉलर साइन नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे। एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द मल्टीफील्ड पैटर्न इज $? name, but is question mark name when used as a variable on the right hand side. When you enter and run, you will see the name of the eligible Khan. The multi-field wildcard takes care of any number of fields. Also notice that multi-field values are returned enclosed in parentheses. ये जो वैल्यू रिटर्न होंगी ये पेरेंथेसिस में रिटर्न होंगी। कैसे होंगी, हम इसको मैंने सारे रूल्स क्लियर कर दिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास रूल्स हैं वहाँ जाऊँ और इनको मैं कोई वैल्यू दे दूँ नेम। ठीक है, अब मेरे पास ये नेम आ गया, इसको मैं मीटिंग अच्छा हम सिर्फ यहाँ पर ये लिख देते हैं क्योंकि ये तो नाम है उसका। यहाँ पर हम करते हैं मिस्टर और अब हम देंगे उसके वेरिएबल को। अब ये हमने याद रखना है कि ये मल्टी फील्ड है, तो यहाँ पर सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम सारे आ सकते हैं। अब एक बात नोट करने की है कि जब हम इसको रन करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ रही होगी तो ये पैरेंथेसिस में होगी, ये डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये हमने ये पढ़ा कि ये क्योंकि डॉलर साइन एक फंक्शन है, ये फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, तो ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एज अ फंक्शन रिटर्न वैल्यू होगी। अब मैं करता ये हूँ कि मैं असर्ट करता हूँ मीटिंग विद अब पहली वैल्यू में मैं कुछ भी नहीं देना चाह रहा, मैं सिंपल इसको एक स्पेस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं कोई स्पेस यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। अब मैंने ये एक एंटर किया, रूल एक्टिवेट हो गया। सेकंड मैं यहाँ पर दूसरा नाम दे रहा हूँ, अब मैं साथ में तीसरा नाम चेक करता हूँ। जितने भी अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो सारे यूज़ हो रहे हैं और वो सारों की वजह से रूल कॉल हो रहे हैं। ये हम कुछ भी कितने भी रख सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं एक एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तब भी हो रहे हैं, क्योंकि एक डॉट भी एक वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी फील्ड कुछ भी हो सकते हैं, एम्प्टी स्पेस भी हो सकता है और साथ में वैल्यूज भी हो सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें पहला मैंने क्या एंटर किया था, एक एम्प्टी स्पेस थी, उसने उस एम्प्टी स्पेस को पैरेंथेसिस में
एंटर कर दिया, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो एज ए प्रिंट आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू थी नहीं, फर्स्ट जो हमने एंटर किया था फैक्ट उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो जो पैरेंथेसिस हैं वो एम्प्टी है अंदर। सेकंड में हमारे पास आसिफ से हमने एक वैल्यू एंटर की थी, वो आ गया। थर्ड में हमारे पास दो लास्ट नेम थे, वो दोनों आ गए यहाँ पर। और फिर लास्ट में हमने कोई डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया, तो वो सारे भी आ गए। अब ये जो रिटर्न है ये मैंने आपको बताया ये पैरेंथेसिस में हो रहा होगा नॉर्मली। अब हम जाते हैं आगे। Anywhere, suppose you want to match of all candidates who had Khan somewhere in their name, not necessary as their first name। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका फर्स्ट नेम जो है वो खान हो, हम ये चाह रहे हैं कि उसके नाम में कहीं पर भी खान हो तो हम उसको मीटिंग के लिए कॉल कर लें। अब ये कंडीशन हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसके लिए हम सिंपल ये करना होगा कि हमें कोई फर्स्ट मल्टी वेरिएबल मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में भी हम कोई मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे, और दरमियान में कोई स्टैटिक वैल्यू जो हमारी कंडीशन है कि उसके नाम के अंदर खान आ रहा हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। द पैटर्न मैचेस एनी नेम दैट हैव अ खान एनीवेयर इन देम। अब कैसे करेंगे हम इसको, सिंपली हम क्लियर करते हैं और रूल में जाते हैं। रूल में हम अब चेंजेस करेंगे। $, क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट नेम, इसमें हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल है, और फिर यहाँ पर हम कर देते हैं इसको लास्ट। अब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इसके नाम को क्योंकि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम ये वेरिएबल को यूज़ करेंगे फर्स्ट, और यहाँ पर दे देंगे लास्ट। अब ये हमने रूल बनाया, हमने इंटर किया इसको, रूल बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये मैंने कोई वैल्यू इंटर की जिसके दरमियान में नाम आ रहा है, इससे एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में मेरे पास वैल्यू है, दरमियान में खान है और लास्ट वैल्यू है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट में कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहा, मैंने सिंपल एम्प्टी स्पेस कर दिया। अब भी हो गया। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट है वो एम्प्टी स्पेस हो सकता है, दरमियान में नाम आ रहा है और बाद में कोई भी वैल्यू आ गई। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम ये भी निकाल लें, तब भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि हमारे पास दोनों एम्प्टी स्पेसेस हो सकते हैं, दरमियान में कोई वैल्यू जो हमारी कंडीशन है कि खान हो तो वो आए तो फिर भी एक्टिवेट होगा। हम यहाँ पर स्टार्ट में कोई वैल्यू रखते हैं और दूसरे को एम्प्टी रखते हैं, तो भी हो रहा है क्योंकि लास्ट एम्प्टी है और पहले हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये कि हमने जो डिफरेंट ऑप्शंस थे सारे अवेल कर लिए और सारे के सारे काम कर रहे हैं क्योंकि दरमियान में मेरे पास वो जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो आ रही है। अब आपको ये पता है कि अगर हम दोबारा सिर्फ खान देते हैं तो वो एंटर नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी है।
तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब हम इसको सिंपली रन करते हैं। जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो भी आ गई। पहले हमने कौन सी इंटर की थी, अली खान शाह, तो वो आ गई। सॉरी, हम इसको क्योंकि हम रिवर्स देखते हैं हमेशा इसको, वो वाली वैल्यू पहले कॉल होती है जो लास्ट में इंटर हुई है। तो अली खान लास्ट में इंटर हुई थी तो इस वजह से वो पहले कॉल होती है क्योंकि स्टैक की तरह काम कर रहा है। तो हमने ये देखा कि जो उसकी लास्ट वैल्यू थी वो एम्प्टी थी, दूसरे में दोनों एम्प्टी थे साइड पे, दरमियान में खान था, फिर तीसरे में पहले एम्प्टी था और दूसरे में वैल्यू थी हमारे पास, और जो पहली थी हमारे पास लास्ट ये वाली जो आउटपुट आई है ये किस वजह से आई है कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो थे वो यूज़ हो रहे थे, और आप देखें वो पैरेंथेसिस के अंदर हैं तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सिंगल एंड मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड हम अगर अब दोनों को यूज़ करना चाहते हैं, सिंगल फील्ड और मल्टी, क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू हो वहाँ पर। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट नेम ज़रूर हो और फिर खान आ रहा हो। अब लेकिन अब ये भी हो सकता है कि कोई भी हमारे पास दरमियान में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। सिंगल एंड मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड कैन बी कंबाइंड, फॉर एग्जांपल द पैटर्न मीटिंग विद सिंगल फील्ड वैल्यू, मल्टी फील्ड वैल्यू, कांस्टेंट और फिर सिंगल फील्ड वैल्यू। अब इसका मकसद क्या हुआ कि मुझे एक वैल्यू ज़रूर चाहिए होगी प्रिंटेबल फॉर्म में, सेकंड अगर हो या ना हो, फिर मेरे पास खान वैल्यू होनी चाहिए और फिर मेरे पास जो उसका लास्ट नेम है वो भी होना चाहिए। मीन्स दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम्स कैन बी एनीथिंग and that the name just prior to the last must be Khan. This pattern also required that the matching fact will have at least 4 fields, since the dollar or multi-field value matches 0 or more fields and all the other must match exactly 4. हम यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, चारों फील्ड्स में अगर तो यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है तो वो कोई असर नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे वैल्यूज़ हमारे पास आने चाहिए। हम कैसे करेंगे इसको? अब हम जाते हैं कोडिंग की तरफ। इससे पहले कि हम कोडिंग की तरफ जाएं, हम पहले इसको क्लियर करते हैं। अब हम रूल बनाते हैं और रूल में हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी है ए, बी, और यहाँ पर हम रख रहे हैं सी। बी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, फिर वैल्यू खान, और फिर हम यहाँ पर सी को प्रिंट करेंगे। रूल अब बन गया। अब मैं कोई इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वैल्यूज़। अब हम सिंपल से शुरू करेंगे। एक वैल्यू आ गई मेरे पास, दूसरी वैल्यू जो मल्टी फील्ड है और फिर कांस्टेंट, और फिर हमने
लास्ट वैल्यू एंटर की। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास रूल एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, मैं ये सेकंड वैल्यू नहीं देता, इसमें मैं एम्प्टी वैल्यू दे रहा हूँ, तो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं करूँगा क्या कि इस सेकंड वैल्यू को निकालता हूँ और फिर इसको एंटर करता हूँ। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये सिंगल फील्ड वैल्यू हमें मस्ट चाहिए होगी, कि फर्स्ट नेम उसका होना चाहिए, फिर उसके बाद जितने भी नाम आ रहे हैं वो हों, और फिर खान वैल्यू हो, और फिर लास्ट नेम भी होना चाहिए। अब अगर हम इसमें दोबारा चेंजेस करते हैं, हम इसको हटाकर पहले नाम दे देते हैं और दूसरा नहीं देते, तो फिर क्या होगा, अब इंटर तो होगी वैल्यू लेकिन फैक्ट में चला गया, लेकिन रूल कोई एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि जो लास्ट है वो होना ज़रूरी है। मैं अब यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ, फिर मैंने एम्प्टी रखा, और अब मैं रखता हूँ यहाँ पर अब भी मेरे पास एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो दो सेटिस्फाई हो रही हैं, और थर्ड जो थी वैल्यू वो मस्ट नहीं थी, तो इस वजह से ये भी मैंने कोई फोर्थ वैल्यू एंटर की, हम यहाँ पर और देना चाहते हैं, तो हम अब इसको जितने भी बढ़ाते जाएंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है। ये ज़रूरी नहीं है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो इस एज अ फर्स्ट फील्ड ही काउंट होगा। यहाँ पर हम मल्टी फील्ड में स्पेस के साथ में एक एक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, तो ये सारे मेरे पास आ जाएंगे एज अ मल्टी फील्ड। अब मैं इसको रन करूँगा, तो मेरे पास क्या हुआ, पहले जो वैल्यू मैंने एंटर की थी वो आई मिस्टर, और फिर ये जो लास्ट में एंटर हुई थी फैक्ट नंबर 8, वो उसकी वजह से एक्टिवेट हुआ था रूल। तो वो क्या था, तस्वर, आसिम, और फिर मल्टीपल फील्ड्स थी, तो वो सारे आ गए, क्योंकि ये जो था ये मस्ट था। फिर यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ आना था वो भी आ गया, और फिर उसके बाद खान और शाह, खान कांस्टेंट था और शाह जो था वो लास्ट नेम, वो भी मस्त था। अब अगर आप देखें तो जो मल्टी फील्ड वैल्यू है वो पैरेंथेसिस में होगी, और जो सिंगल फील्ड वैल्यू है वाइल्ड कार्ड है वो बग़ैर पैरेंथेसिस के प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमने जितने भी ऑप्शंस रखे, एक में हमने ये रखा, इधर में हमने दो नाम रखे, एक में हमने सिंपल नाम रखा, एक में हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो भी वो हो गया एक्टिवेट। हमने ये रखा कि एक में एक एम्प्टी रखा और पहला नाम था उसका खान था और लास्ट नेम भी था, और दूसरे में मैंने सिर्फ एक वैल्यू रखी, बाकी सारे एक जैसे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, इसका जो सेकंड नेम है एक में है और दूसरे में नहीं है, इस वजह से ये डिफरेंट है, तो इसकी वजह से भी एक्टिवेट हो गया था रूल। तो मतलब यहाँ बताने का ये था और मकसद कि हम दोनों को कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, single and multi-field wildcard. Although multi-field variable can be essential for pattern matching in many cases, their overuse can cause much efficiency because of increased memory requirement and slower execution. As a general rule of style, you should use dollar or multi-field wildcard only when you don't know the length of the field. Do not use
multi-field wildcard simply as a typing convenience। हम यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तो हम मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड का आइडिया हमें अब आ गया है कि हम कोई भी वैल्यू उसके साथ मैच कर सकते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप हर जगह पर इसको यूज़ करें, क्योंकि हमने ये बताया था कि ये एक्सपर्ट सिस्टम की प्रोग्रामिंग है और एक्सपर्ट सिस्टम एम्बेडेड भी हो सकते हैं, वो एक छोटी सी मशीन के अंदर भी रन हो सकते हैं। अब अगर हम वहाँ पर हमारे पास मेमोरी का प्रॉब्लम है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा फ़ोन है या वो एक रेस्ट वॉच है जिसके अंदर हम कोई सॉफ्टवेयर रखना चाह रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम का, ये जो हमारे पास है डिफेंस मिलिट्री, इनके पास कुछ वॉच होते हैं जो वॉच हमें जो ये बताते हैं कि आपने अपने टारगेट को कैसे हिट करना है, डायरेक्शन बताते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं। अब वो ऐसे छोटे एक्सपर्ट सिस्टम हैं जो जिसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, जो रिक्वायरमेंट उसके बहुत लिमिटेड हैं, जो इसके रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। अब वहाँ पर आप ये ऐसे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मल्टी फील्ड वेरिएबल वाइल्ड कार्ड जब हम यूज़ करेंगे तो क्योंकि वो मेमोरी उसको मोस्टली चाहिए होती है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि कितने फील्ड्स आ रहे होंगे, क्योंकि रन टाइम पे तो वो कर नहीं सकता, इस वजह से वो एज ए वेरिएबल मेमोरी में काफ़ी जगह ले लेता है। तो हम आपको ये जहन में रखना होगा कि जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो बहुत एहतियात के साथ यूज़ करेंगे ताकि मेमोरी ओवरलोड ना हो जाए, और मोस्टली हम सिर्फ ऐसी ही जगह पर यूज़ करेंगे जब हमें पता ना हो कि इसकी लेंथ क्या है। अगर तो हमें पता है तो फिर हम एग्जैक्टली सिंगल फील्ड यूज़ कर रहे होंगे और हम टू द पॉइंट अपना काम कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। हमने आज ये सीखा कि हम सिंगल फील्ड वाइल्ड कार्ड को कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कोई स्पेसिफिक रखना चाह रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें वेरिएबल हों और कुछ चीज़ें फ़िक्स हों, और हमने एग्जांपल देखी उसमें नाम के लिहाज से कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नाम के अंदर एक स्पेसिफिक कीवर्ड आ रहा हो और उसका कोई फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो या सिर्फ लास्ट नेम हो, इस तरह की कोई भी कंडीशन, डिफरेंट ऑप्शंस हमने देखे थे, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिंगल फील्ड था, और फिर हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे वो भी हमने सीखा। हम उसको एज अ वेरिएबल ले सकते हैं उस वैल्यू को, और उसको हम फिर प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं अगर तो वो इंटीजर वैल्यू है। हम आगे और भी देखेंगे इनकी डिटेल। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी रीज़न क्या थी उस तरफ जाने की। हमने ये देखा कि हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके नाम मल्टीपल होंगे और वो शायद ज़्यादा हो जाएं, तो हम उनके लिए फिर हमें अलग रूल्स बनाने पड़ेंगे और स्लॉट्स रखनी पड़ेंगे उनके लिए। तो वो रूल्स भी ज़्यादा हमें चाहिए होंगे और फिर वो वेरिएबल्स भी उनके लिए ज़्यादा चाहिए होंगे। तो उससे बचने के लिए फिर हम मल्टी फील्ड की तरफ चले गए। मल्टी फील्ड में नॉर्मली क्या होगा कि हम वहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, नॉन प्रिंटेबल भी और प्रिंटेबल वैल्यू भी रख सकते हैं, और उसके नंबर्स जो हैं वो डिपेंडेंट है मेमोरी के साइज़ पे। तो अगर हम उसमें जितने भी वैल्यूज़ रखना चाहें हम रख सकते हैं। अब हमने ये देखा कि अगर हम मल्टी फील्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम वो डॉलर साइन यूज़ नहीं करते, वो हम एज अ फंक्शन लेते हैं उसको। और फिर मल्टी फील्ड में एक ये भी हमारे पास इशू आ रहा है कि वो पैरेंथेसिस में वो वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं, वो हमारे पास बग़ैर पैरेंथेसिस के नहीं है। हम इसको हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं ख़ुद से कि हम वो पैरेंथेसिस रिमूव कर दें उसके, और जो हमारे पास मल्टी फील्ड वैल्यू आ रही है उसको एज अ फैक्ट इंसर्ट कर दें दूसरे प्रोग्राम के लिए। हम जो हम असाइनमेंट्स होंगे और डिफरेंट
छोटे छोटे टास्क होंगे, उसमें आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तरीका आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं। इस पर थोड़ा सा सोचेंगे आप तो आपके पास इसका हल निकल आएगा। हमने फिर उसके बाद ये देखा कि सिंगल फीड वेरिएबल और मल्टी फीड वेरिएबल को हम कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं और दोनों कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम फिक्स हो जाएं कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं कि हम किसी मल्टी फील्ड वेरिएबल को या सिंगल फील्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमने ये सीखा कि सिंगल और मल्टी फील्ड दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा कि सिंगल फील्ड का मकसद ये था कि वो फिक्स है, वो जो रूल जो फील्ड है वहाँ पर वैल्यू मस्ट होनी चाहिए, हम वहाँ पर एम्प्टी स्पेस नहीं दे सकते अगर तो हम रूल को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। जहाँ पर सिंगल फील्ड वैल्यू होगी वो नॉन प्रिंटेबल वैल्यू हमें चाहिए होगी उसके लिए। जो मल्टी फील्ड वैल्यू है, मल्टी फील्ड वाइल्ड कार्ड है, उसमें हमारे पास नॉन प्रिंटेबल वैल्यू भी आ सकते हैं और साथ में ये भी होगा कि उसके नंबर्स भी मल्टीपल हैं, हम मल्टीपल वैल्यूज़ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोनों को हमने कंबाइन भी किया और दोनों को हमने प्रिंट भी किया। तो आज के लेक्चर में हमने ये बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कमांड्स थे, बेसिक कंडीशंस थी, हमने वो सीखे, दोनों को यूज़ करने का सीखा और हमने थोड़े से एग्जांपल देखे। हम इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हम इनको मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं या एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इंशाल्लाह और चीज़ें डिटेल में देखेंगे। हम फैक्ट्स को दोबारा कैसे यूज़ करेंगे, हम जो ये इनिशियल फैक्ट है इसका क्या मकसद है, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, इसके ज़रिए हम अगर कोई रूल को एक्टिवेट करना चाहते हैं वो कैसे होगा। तो ये सारे काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फ्यूचर में सीखेंगे। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे और कुछ और प्रोग्रामिंग और कोडिंग के मुतालिक बात करेंगे। आप तब तक नेट पे इसके मुतालिक सर्च करें, आप के पास वो यूज़र गाइड भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और साथ में आप डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनको किस तरह आप रूल बेस बना सकते हैं, किस तरह उसको रूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं या कोई गोल अचीव करना है, कहीं कोई आपके पास टारगेट है वो अचीव करना है, उसके लिए कौन से रूल्स बना सकते हैं आप। अब उन रूल्स को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एनिमल्स की लिस्ट है, उसमें हम देखना चाहते हैं कि कौन से मैमल्स हैं और कौन से नॉन मैमल एनिमल्स हैं। तो वो आप उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आप उसके रूल्स बता सकते हैं। सिंपल रूल्स चेक करें कि मैमल एनिमल्स के कौन से रूल्स हैं, उनके क्या क्या कंडीशंस हैं, जो फुलफिल हों तो वो मैमल कॉल होंगे। तो उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हर एनिमल में सारे कंडीशंस ना हों, चंद एक हों जो मैमल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप रख सकते हैं एज अ मल्टी फील्ड वैल्यू और एज अ सिंगल फील्ड वैल्यू। वो कंडीशन होगी जो मस्ट है किसी भी मैमल के लिए। तो हम इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करें, घर में इस पर प्रैक्टिस करें और इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाएं। आप नेट पे इसके और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं और आप ख़ुद से भी सोच सकते हैं छोटे से प्रॉब्लम्स को रूल्स में अपने एक्सपर्ट सिस्टम के लिए कैसे बना सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।